یہ ہم ہیں، یہ میں ہوں، یہ تم ہو کہ جب ہم زندگی کے ایسے مرحلے تک پہنچتے ہیں، ہم رک کر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کاملیت کے درجہ سے گرے ہوئے ہیں، لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں اور ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ ہم جھکتے ہیں اور اپنا سارا بوجھ صلیب پر لاد دیتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کے لیے اس کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیاں پیش کرتے ہیں۔ ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے، یہ یسوع کے وسیلہ سے بچائے جانے اور اپنی زندگیاں صلیب کے قدموں تلے لانے اور گھمنڈ و فخر سے پھر جانے کا سلسلہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے یہی جرم ہے، ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں، اپنے گناہوں کے مجرم، اور نئی پیدائش کے لیے یہی طریقہ کار ہے جس کا لفظی مطلب کسی زندگی کا تبدیل ہونا ہے۔ اور یہی وہ موڑ ہے جس سے زندگیوں کی جنگ شروع ہوتی ہے جو جسم اور روح کے درمیان ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایمان کے وسیلہ سے روح القدس کی مدد سے ہماری تصدیق و تقدیس ہوئی۔ ہم اس طریقے سے بچائے یا ہماری تقدیس نہیں ہوئی کہ بعد میں ہماری تصدیق ہوئی۔ آپ کی تصدیق ہوتی ہے اور وہ نئے تقدیس شدہ کہلاتے ہیں۔ آپ اپنی تصدیق کے وسیلہ سے پاک کیے جاتے ہیں۔ آپ کی تقدیس آپ کی تصدیق کا نتیجہ ہے۔ آپ کی تصدیق آپ کی تقدیس کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اس سلسلے سے گزرتا ہے۔ آپ کی ایمان کے وسیلہ سے تصدیق ہوتی ہے، پھر آپ کی تقدیس ہوتی ہے، کیونکہ اس نے آپ کی زندگی میں کام کیا، کیونکہ اس نے آپ کو بچا لیا، آپ نے روح القدس کے وسیلہ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ بدولت ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں، ہم صلیب اٹھاتے ہیں اور ہم پیچھے چلتے ہیں اور ہم پھل لاتے ہیں۔ یہ ہمارا پرانا آدم ہے اور یہ آپ نئے ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے، ہم بچے کی مانند ہو جاتے ہیں، اور یہ نئی پیدائش کی طرح ہے۔ اور اس طریقہ سے آپ اپنی زندگی میں سیکھنے لگتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی حقیقی طور پر کس سے متعلق ہے۔ پاک ہونے سے اور اچھا پھل لانے سے آپ کو اپنی زندگیوں میں گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جسم اور روح کی جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے جب آپ مسیح کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو منجی ہے جو ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دیتا ہے، اور یہی نتیجتاً جنگ ہے جو ہمارے جسم اور روح کے درمیان ہے، جس کے متعلق بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ۔ اور یہاں آپ اس تیر کے نشان کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے تقدیس پر بنایا ہے، کہ آخر کار پاکیزگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم روح میں چلیں تاکہ روح کے پھل ظاہر ہوں، نہ کہ جسم کے۔ آپ جانتے ہیں آپ اور نئے مخلوق بنتے جاتے ہیں اور زیادہ مسیح کی مانند، اور یہی تقدیس کا مقصد ہے۔ لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ترتیب ہے اور یہ بہت سی مشکلات کی وجہ بنتا ہے۔ یہاں بہت سے ایسے فرقے اور کنارے پر کھڑی ہوئی تحریکیں ہیں، حتیٰ کہ کیتھولک کلیسیا، جہاں اعمال کی بنیاد پر تعلیم شرعی قرار دے دی گئی اور اس قسم کو قانونی حیثیت سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ تعلیم دیتے ہیں یہ آپ کے وسیلہ سے ہے
कि आपके ईमान के जरिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी तकदीस या पाकीज़गी की वजह से नहीं कि हम बचाए गए हों, बल्कि ये खालिस तौर पर हम यीशु के वसीला से तस्दीक किए गए हैं। जब ये शख्स और वो अपनी ज़िंदगी मसीह को देते हैं, वो उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और मसीही कहलाते हैं, वो ईमानदार कहलाते हैं और उसके वसीला से बचाए गए हैं। बतौर एक शागिर्द के इससे आप पुराने आदम को जान सकते हैं। ये पुराने आदम की परेशानी का हिस्सा है जो अब भी रूह के खिलाफ जंग करता है। लिहाजा हम जिस्म की हालत में हैं और इसके साथ हम क्या उठाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कमोबेश हम सब वाकिफ हैं। मुझे लगता है कि ये एहसास कि हम गुनहगार हैं किसी तरह बचपन के रद्द अमल की तरह दूर तक ले जा सकते हैं। एक ऐसा एहसास जिससे जज्बाती रद्द अमल सामने आए कि हमने गलत किया है और हम कामिल नहीं हैं और हम गुनहगार हैं। ये पुराने आदम का हिस्सा है जिसे हम अपने जिस्म के फलों में उठाए फिरते हैं और उस गुनाह में जो लादीनियत और शरई हो चुका है, बिल्कुल यहूदा के उस झूठी वफा की तरह एक गुनाह करने का इजाजतनामा। और ये आप जानते हैं, ये एक बच्चा है, एक मसीही बच्चा है। ये तमाम चीजें एक मसीही, नाबालिग मसीही जो पुराने आदम की तारीकी के नीचे है। और क्या आपको ये दिलचस्प नहीं लगता कि जिस्म के फलों में शरई कवानीन और गुनाह करने का इजाजतनामा दोनों शामिल हैं। दो चीजें जो एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देती हैं, शरई कवानीन और गुनाह करने का इजाजतनामा, दोनों इस बच्चे का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं नई पैदाइश की जहानत के जिस्म में पुराने आदम की तरह अमल करना, क्योंकि शरई कानून तरीका है कि इंसाफ करे, बिल्कुल अपने आप की खुद तस्दीक करना है और ये एहसास करना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल एक एहसासी रद्द अमल है जिसके अंदर घमंड कार फरमा है। और यही वो बात है, यही वो नुक्ता है जिस पर सारा दारोमदार है। फ़ख्र व घमंड ही वो असल बात है। लिहाजा शरई और कानूनी फिरके जिस्म के फल और झूठी वफादारी के गुनाह करने का इजाजतनामा की बुनियाद फ़ख्र ही है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप जानते हैं कि हम अपने आप को खुदा की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने आप को रूह के हवाला नहीं करना चाहते। लिहाजा हम अपने आप को इजाजत देते हैं कि गुनाह करने की, और ये है जिस्म के मुताबिक चलना और जिस्म के कामों का इंतखाब करना। ये जिस्म के फल हैं, ये फ़ख्र है, ये इनकार है, और ये कोई खुद इनकारी का कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये अपने आप को बढ़ाने और बुलंद करने का तरीका है और हकीकत से इनकार है। ये बेइख्तियारी है, इसमें कोई इख्तियार नहीं। जंग के इख्तियार जिस्मानी नहीं है, ये कुव्वत से खाली है, ये खुद नुमाई है। ये खुदा को इज्जत नहीं है, ये खुदा को सरफराज नहीं करते और बतौर खुदा उसकी प्रस्तिश जिसकी जड़ फ़ख्र है। और ये फिर से पुराने आदम को साथ लिए फिरना है जो पहले से हम में परत या तय है। आप उस कलीसिया से वाकिफ हैं जो नीम गर्म है और आंखों की हवस से भरी हुई थी, जिसकी ख्वाहिश प्रस्तश करने का ख्याल की बुनियाद जज्बाती है। लेकिन मेरा नुक्ता यही है, हमेशा सफ़ेद या स्याह नहीं होता। अगर आप इस मरहले पर हैं कि तौबा करें और इस जंग में दाखिल हो, तो ये बहुत खूबसूरत। हम सब दूर से आगाज करते हैं, पुराने आदम से हम बचाए गए हैं और फिर हम पाक होने के लिए रूह के कामों की तरफ अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। हम एक बालिग मसीही की तरह आगाज़ो इख्तिताम नहीं करते। ये एक बच्चा है, ये एक बालिग मसीही है, ये इख्तियार व कुव्वत से खाली है,
ये इख्तियार व कुव्वत से भरा है, और इख्तियार व कुव्वत सच्ची वफादारी, हलीमी से और अपने आप को वक्फ करने और खुदा की मोहब्बत और अहकामात के आगे अपने आप को झुकाने से है। और यही हकीकी मोहब्बत है। ये हकीकी नहीं है, ये दुनिया की मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत है, लेकिन ये जंग है। लिहाजा ख्याल पाक होने का है, तीर को रूह के जरिया से घुमाने का है। ना कि अपनी खूबियों के बलबूते पर रद्दी से खजाने में तब्दील हों और फिर बाद में जलाल की हालत में दाखिल हों, जैसा कि 3 मरहलों का तरीका है। पहले की हालत का एक सिलसिला है, उसकी मौत से तस्दीक और जी उठना, उसके रूह से तकदीस होना, और फिर हमारी क़यामत बिल्कुल उसी तरह। और ये हमारी मौत को ज़ाहिर करता है, और ये पुराने आदम की मौत को ज़ाहिर करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरह बदलते जाते हैं, लेकिन ये उम्मीद से हमारी मदद करता है कि कुछ लोग, हम सब मुख्तलिफ हैं और हम मुख्तलिफ मरहले पर हैं। यहाँ कोई ख़ास वक़्त या मखसूस क़वाइद ज़वाबित नहीं कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे वक़ू पज़ीर होगा। आप जानते हैं कि हम हर एक की ज़िंदगी में खुदा इनफरादी तौर पर इस सिलसिले में मुख्तलिफ मरहलों में काम और हुक्मरानी करता है। तो आइए हम सीखें और मिलकर आगे बढ़ें कि जिस्म क्या है, और उसको अपना आप दें और उसे इजाज़त दें ताकि हमें नूर में तब्दील करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेटे के हम शक्ल बनते जाएं, उस हकीकी वक़ार और इस्तेहकाक के लिए कि कायनात के खुदा को हासिल करें जो हम में काम करता है। वो कितना अजीम है जो हम में है और फिर इस दुनिया में है, और आखिरकार उसकी मानद बनकर जलाल पाएं और उसको देखें जैसा वो है और उसकी मानद बने। तो अगर हम मुश्किलात और एज़ारसानियों का सामना करते हैं और ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जो बैरूनी सतह पर हमें बुरी महसूस होती हैं, ये दरअसल ये एक ऐसे अजीब वादे की तरफ इशारा है जो इस दुनिया की दस्तरस से बाहर है। आप जानते हैं, इस जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो चीज़ें हमें अच्छी मालूम नहीं होती, लेकिन असल में वो किसी बड़ी अजीम भलाई के लिए काम कर रही होती हैं। तमाम चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, और एक दिन हम जलाल पाएंगे और एक दिन हम आसमान पर उसके साथ घर में होंगे। लिहाजा हिम्मत न हारें और लोगों की इन गलत तालीमात का एतबार मत करें। लिहाजा मेरी कोशिश है कि आपको बताऊं कि इसी तरह आप बचाए जाते हैं कि हकीकतन और ये खालिस्तन मसीह, सिर्फ मसीह जो कोने के सिरे का पत्थर है, मुनज्जी की मोहब्बत में कमज़ोर से ताकतवर बना, और इसी सबब से वो खुदावंद है, सबका खुदावंद है, उसी के वसीला से है और उसी में हुआ। हमें उस पर एतमाद करना है। लिहाजा कोशिश करें और लोगों को अबलीसी फिरकों के चुंगल से आज़ाद करवाएं। कानूनियत जिस्म के उल्टे फलों, गुनाह के इजाज़तनामा में गुनाह आलूदा ज़िंदगी बसर करने, और यही वो चीज़ें जिससे उसने हमें निजात दी, और ये फरमाबरदारी, और ये सिर्फ उसी के वसीला है। दोस्तों, वो तुमसे मोहब्बत रखता है। अगर वो ये ना करता और आज हम कायम ना रह सकते थे, वो मेरी अपनी खूबियों के जरिया से नहीं है, बल्कि ये खालिस तौर पर उसके वसीला से है, खालिस तौर पर उसके वसीला से है। वो निहायत भला खुदा है और वो हमसे प्यार करता है, और वो आपको प्यार करता है, और वो इनफरादी तौर पर आपसे प्यार करता है। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। आमीन।